accept the parameter, and scanf is used to accept the parameter from the user. Scanf means accepting the parameter from the user. Printf is used to display the message. Message can be a constant message, a message can be a string message, a message can be a variable. Variable, constant, string. Just like if you are using the int I, j, and k. If you want to display the values of this I, j, k, we can use this printf. If you want to display the value of pi is equals to 3.14, for that purpose you can also use this printf. If you want to display something constant, string, this is my first program. So this all can be displayed with the help of the printf. Now, what is the use of this scanf? Scanf means that is the read. Yes, yes बोलिए. ओपन है वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं. Okay. So this scanf is used to read the parameter from the user. फिर से सुनिए, printf क्या होता है? printf is used to display. सिंपल कर दिया अभी मैंने. printf is used to display the values. और scanf क्या करेगा? scanf is used to read the values from user. Displays the values, और ये क्या करेगा? हमारे पास में scanf के लिए यूज होगा. तो now we are making one program which will be accept the parameter from the user, and that will be used for the addition of a number. पहले हम वर्ड में लिखते हैं, बाद में मैं वहां लेके चलता हूँ, क्योंकि वहां की स्क्रीन जो होती है थोड़ी छोटी होती है, इसलिए मैं इसका यहाँ पर यूज कर रहा हूँ. So initially first thing we have to do, that is we have to include the file, that is hash include stdio.h, standard input output file, header file, we have to include it. Next thing, we have to start the program with the help of the main. So we will write the main, opening closing round bracket, main का m small में आएगा. के बाद start होता है with the curly brace और end होता है with the curly brace, means whatever be the you are going to write in the main, that must be specified in the curly braces itself. जो भी कुछ आप लिखोगे वो मेन के अंदर होगा और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही होना चाहिए. इसको हम कहते हैं, ये जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ मेन. और इसको ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, इसीलिए हम इसको वर्ड कहते हैं एज अ फंक्शन. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ अ नंबर. एडिशन ऑफ अ नंबर से पहले आपको सूडो कोड बनाना पड़ेगा. देन वी हैव टू क्रिएट द एल्गोरिथम, देन वी हैव टू क्रिएट द फ्लो चार्ट, एंड देन फाइनली यू हैव टू राइट डाउन द प्रोग्राम. तो सूडो कोड में हमने लिखा था you have to accept the two parameters. तो हम यहाँ पर दो चीजें लेते हैं. जैसे सपोज we want to perform the addition of a number, so a plus b, और इसको हम कर देते हैं sum is equals to a plus b. sum में क्या होने वाला है? sum is used to store the values, that is nothing but the addition of the two number, that is the addition of a and b is going to be stored in the variable sum. sum क्या हो? a क्या होगा? a is a variable. Second thing, b is a variable and sum is also the variable. Now हम इसमें क्या करने वाले? We are going to store the integer values. इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होंगे. तो ये तीनों को सबसे पहले जब यूज करना होगा, अब देखिए मैंने आप लोग को बताया था, whenever we are going to create any program,
we have to use three things: input, calculation, and last one is the output. आउटपुट। ये तीन चीजें हमें होगी ही, अगर नहीं होगी तो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज द इनपुट। नो डाउट अब हमारे पास में आ गया कि हमारे पास में दो वेरिएबल्स है ए और बी, क्योंकि हम पहला नंबर डालने वाले हैं ए में और सेकंड डालने वाले हैं बी में। अब थर्ड सेकंड थिंग इज कैलकुलेशन, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास में, सम। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे। इनपुट में लेने से पहले इनिशियली वी हैव टू डिफाइन इट, दैट इज द डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन किस चीज का, जो जो आप यूज करने वाले, क्या यूज करने वाले हो, ए बी और तीसरा हमारे पास में सम। तीनों को हम क्या डिफाइन करेंगे, हम तीनों को ले रहे हैं एज ए इंटीजर टाइप। प्रोग्राम में आते वापस। अब देखिए इसको ध्यान में रखना, इसको भूलना नहीं। डिक्लेरेशन करना है हमको सबसे पहले। डिक्लेरेशन में क्या, हम वी आर गोइंग टू यूज दिस ए बी और सम, इसको हम डिफाइन करेंगे एज ए इंटीजर टाइप, एज अ इंट। उसके बाद क्या करना है हमको, वी हैव टू एक्सेप्ट ए एंड बी। नेक्स्ट थिंग वी हैव टू परफॉर्म द कैलकुलेशन, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, एंड लास्टली वी हैव टू डिस्प्ले द सम। ठीक, तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो इंटीजर इनिशियली हेडर फाइल मेन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। सबसे पहले हम डिक्लेरेशन करेंगे, सो इंट ए कॉमा बी कॉमा सम। सी लेना है, सी। हाँ बोलिए। सर ये सम भी लेना पड़ेगा इंटीजर में? आपको स्टोर करना पड़ेगा वैल्यू, आपको सी लेना है, आप सी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये देखिए ए प्लस बी को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना हमको। अब देखिए आपने जो क्वेश्चन अराइज किया, इसका इसका पीछे रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक, थोड़ी देर में मैं आता हूँ उस पर। नेक्स्ट थिंग, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट कर देता हूँ। कांस्टेंट इन द सेंस कि a इज इक्वल्स टू, सपोज मैंने दे दिया 10 एंड b इज इक्वल्स टू मैंने दे दिया 20। उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे सम इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ये हो गया। और बाद में हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में हम यहाँ पर डबल कोट्स में लिखते हैं, लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम बनाया था प्रिंट एफ में, में सर एडिशन इक्वल्स टू परसेंट डी। अब बोलिए, किसी कुछ बोलना है? सर वैल्यूज को मिडल में लिखना कंपलसरी है क्या? मतलब मिडिल में मतलब कैसे? सर आप स्पेस दे के लिख रहे हो ना, मतलब मिडल में लिख रहे हो ना वैल्यूज को। उसको टैब कहते हैं। हाँ वो तो सर टैब आप सेटिंग टैब का होती यूज है, वो कर रहे टैब हो। देना जरूरी है। क्यों, वो एक्चुअली प्रॉपर सेटिंग के लिए उसका यूज करते हैं, प्रॉपर वे से कैसे दिखना चाहिए उसके लिए हम उसका यूज करते हैं। और यहाँ पे लिखा हमने सब। ठीक, अगर ये हमने टैब नहीं दिया तो क्या होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए अब जाएगा क्या नहीं पता। ठीक, तो ए में एक वैल्यू हमारे पास में, बी में एक वैल्यू हमारे पास में, सम में हमारे पास में एक वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। तो ईच टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस, चलो इसको भी मैं निकाल देता हूँ जैसे आपने कहा अभी। और हियर वी विल टेक द वैल्यू एज ए एंड बी। बराबर, ये सवाल था आपका कि सर वाई यू आर टेकिंग द वेरिएबल एज ए सम, वेरिएबल सम आपने क्यों लिया। अब इसमें क्या होगा कि सम का, अगर सम ये जो वेरिएबल में अगर आप स्टोर करते हो वैल्यू, तो इन फ्यूचर अगर आपको कहीं पर भी कुछ आगे मैनिपुलेशन करना होगा, तो उस केस में हमारे पास में प्रीवियसली ये वैल्यू स्टोर रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ अ सम आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज। तो ये स्टेटमेंट अगर आपने नहीं लिखी तो एवरेज के लिए फिर से आपको अलग से कोड लिखना पड़ेगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस में आता है कि जो वैल्यूज होती है उसको एक जगह पे स्टोर कीजिए आप। वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया, और अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं, यहाँ पर हम लिख देंगे ए वी जी एवरेज। तो आप बोल सकते हैं कि सर आपने सी क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे डी क्यों नहीं लिखा। तो
तो a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू सम, इसलिए ये वर्ड से इंडिकेट हो जाता है कि वी आर गोइंग टू परफॉर्म दी सम। एवरेज लिखा सपोज मैंने ए वी जी इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 2, तो ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि वी आर परफॉर्मिंग द एवरेज ऑफ समथिंग। ये सम में हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है डिवाइड बाय 2। आपने ये लिखा, या फिर इसको सपोज हम चेंज करते हैं एज एडिशन ऑफ परसेंट डी। ये दोनों का आंसर आपको सेम मिलेगा, लेकिन इन फ्यूचर अगर हमको इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन का कहीं यूज करना है, इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन का, तो उस वक्त आप नहीं कर पाओगे। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो हियर वी आर स्टोरिंग सम इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और जिसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। डायरेक्टली हम किसी वैल्यू को वहां पर प्रिंट नहीं करेंगे। ठीक, तो ये हमने ले लिया, एंड हियर वी आर डिस्प्लेइंग द वैल्यू एज अ प्रिंट। ये हमारा एक कांस्टेंट प्रोग्राम हो गया कि जिसमें हम क्या करेंगे, एक कंटिन्यूस हमारे पास में, आप जितने बार भी एग्जीक्यूट करोगे यू ऑलवेज गेट दिस वैल्यू एज, तो एक टैब देना, सिर्फ टैब से वो चले जाता है बराबर। अदरवाइज क्या होगा, ये इस तरह से दिखेगा प्रोग्राम, एक साथ दिखता है, वो प्रॉपर सेटिंग नहीं होती, इसीलिए उसको हम एक टैब में आगे लिखते हैं। ठीक, तो ये हमने देखा था रिगार्डिंग द प्रिंटफ कि प्रिंटफ में हमको क्या करना पड़ता है, वी आर गोइंग टू डिस्प्ले द वैल्यू। जो भी यहाँ पे आप लिखोगे, जिस तरह की वैल्यू होगी उस पर डिपेंड यहाँ पर उसका रिटर्न, उसका स्पेसिफायर होगा। तो परसेंट डी दैट इज यूज फॉर द इंटीजर वैल्यू, हम यहाँ पर परसेंट डी का भी यूज कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट, अब देखिए हमको यहाँ पर क्या करना है, वी हैव टू यूज दिस स्कैनफ। अब स्कैनफ में क्या करना है कि ये अब देखिए हम स्कैनफ का यूज क्यों कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि ये प्रोग्राम आप 10,000 टाइम भी एग्जीक्यूट करोगे, यू विल ऑलवेज गेट द रिजल्ट एज 30। आप में से बोल सकते हैं कि सर अगर मुझे ये वैल्यू चेंज करना है, तो आप में से एक सोल्यूशन बोलेगा करिए यहाँ पर जाके उसको 100 कर दो और इसको 200 कर दो, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ये हम यूजर को बोलेंगे भैया वेन एवर यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम यू हैव टू एंटर द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर। क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू एंटर फर्स्ट नंबर एंड नंबर। ठीक, इसमें हमारे पास में गया फर्स्ट नंबर, इसमें गया हमारे पास में सेकेंड नंबर। ये हम यूजर को बोलेंगे कि आपको पहला नंबर एंटर करना है, सेकेंड नंबर एंटर करना है, और ये पहला नंबर जो होगा इसको हम स्टोर करेंगे हमारे जो वेरिएबल ए, और दूसरा जो हमारे पास में है बी। ध्यान से सुनिए, हम यूजर को बोलेंगे कि एंटर फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर कहाँ जाएगा, ए में। एंटर सेकेंड नंबर, वो जाएगा बी में। प्रिंटफ से क्या बोलेंगे हम, भैया आपको एंटर करना है ना, एंटर, भैया पहला नंबर डालो, एंटर फर्स्ट नंबर फॉर कैलकुलेशन। और देखिए जब इस तरह से मैसेज जब डिस्प्ले करोगे, ये क्या होगा, ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। यहाँ पर एक स्पेस देना, क्या होगा, यहाँ पर एक स्पेस देंगे हम, और एक कोलन देंगे, और एक और स्पेस देंगे, वो सेपरेट करता है, बाकी कुछ नहीं करता उसमें। यहाँ पर हम एंटर करेंगे। ये आपने मुझे कहा कि सर आप पहला नंबर एंटर डालिए, तो सपोज मैंने 10 हिट किया, तो कहीं ना कहीं पर स्टोर होना चाहिए। उसके लिए हम लिखते हैं स्कैन एफ, मतलब आपके स्क्रीन पर जो भी होगा उसको आपको रीड करना है। आपने जो भी हिट एंटर करोगे दैट इज गोइंग टू बी रीड फ्रॉम द स्क्रीन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द स्कैनएफ। अब स्कैनएफ करते वक्त हमको थोड़ा प्रॉपरली ध्यान देना पड़ता है। पहले डबल कोट में हमको इसका स्पेसिफायर देना पड़ता है, जैसे इंटीजर लिया हमने, सो हियर वी विल राइट द परसेंट डी, परसेंट डी। ठीक, परसेंट डी मतलब कि हमको इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। यहाँ पर एक कॉमा देंगे,
कॉमा देने के बाद यहाँ देंगे एम्परसेंड और ए क्यू, बिकॉज फर्स्ट जो जा रही है हमारे पास में बी में। आप बोलोगे सर इसको अगर हमने हमारे पास अगर सेकंड होता तो क्या कर दे, उसको भी देख लेते हैं। परसेंट क्यों दिया? हाँ, वो उसका सिंटैक्स है बेटा, वो ये सिंटैक्स है। ये परसेंट डी मतलब कि इसका जो स्पेसिफायर होता है वो होता है परसेंट डी लिख दीजिए, परसेंट एफ लिख लीजिए, वो जो उसका स्पेसिफायर होगा वो। और एम्परसेंट ए मतलब कि आपको वहां से उसकी वैल्यू को एक्सेप्ट करना है। पहली वैल्यू आ गई हमारे पास में ए में, ये आ गया ए। दूसरा हमारे पास में है बी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी। सबसे पहले क्या होगा, देखिए ये स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर फर्स्ट नंबर फॉर फर्स्ट नंबर फॉर कैलकुलेशन, एंटर सेकेंड नंबर फॉर कैलकुलेशन। जब फर्स्ट नंबर ऑफ कैलकुलेशन डिस्प्ले होगा, आप एक नंबर एंटर करोगे, वो जाएगा हमारे पास में ए में। उसके बाद जैसे आप सेकेंड नंबर एंटर करोगे, वो जाएगा हमारे पास में बी में। अब देखिए ये ए बी लिखने से क्या हुआ कि यू डोंट हैव टू राइट दिस ए इज इक्वल्स टू 100 एंड बी इज इक्वल्स टू 200। जब भी आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे, ईच टाइम आपको फर्स्ट नंबर एंटर करना पड़ेगा एंड यू हैव टू एंटर दिस सेकेंड नंबर। जो फर्स्ट नंबर होगा दैट विल गोज टू द वेरिएबल ए, सेकेंड नंबर विल गो टू द वेरिएबल बी। ये हो गया ए बी। और इसका कैलकुलेशन जो भी होगा ए प्लस बी दैट विल गोज टू द वेरिएबल सम, सम में जाएगा। जो कैलकुलेशन होता है हमेशा वो जाता है इस डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट जाता है। बी को ए में ऐड कर देंगे और बी और ए को ऐड करने के बाद रिजल्ट जाएगा हमारा सम में। तो रिजल्ट कहाँ स्टोर हो जाएगा, हमारा सम में। और लास्टली हम क्या डिस्प्ले करेंगे, एडिशन ऑफ परसेंट डी सम। सम क्या है हमारे पास में, इंटीजर, और इंटीजर के लिए हम क्या यूज करते हैं, परसेंट डी। ठीक। अब देखिए ये जो दो लाइन लिखी हुई है मैंने, इसको मैं और एक में कंबाइन कर सकता हूँ। नीचे दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमने दो लाइन लिखी है, ये दो लाइन को हम एक इसमें कंबाइन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, देखिए कैसे। यहाँ पर हम एक डिस्प्ले कर रहे हैं मैसेज, यहाँ पर भी एक डिस्प्ले कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वैल्यू, यहाँ पर भी एक वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, देखिए कैसे करते हैं हम। अगर मल्टीपल वैल्यूज को एट अ टाइम एक लाइन में अगर एक्सेप्ट करना है तो कैसे लिख सकते हैं, उसकी तरफ ध्यान दीजिए आप। एंटर फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर फॉर कैलकुलेशन फॉर एडिशन ऑफ नंबर्स। ये एक के लिए हमने क्या लिखा, परसेंट डी। दूसरा भी है हमारे पास में, तो इसको लिखेंगे परसेंट डी, इसमें स्पेस नहीं आएगी। ठीक, परसेंट डी, परसेंट डी। फ्लोट के बारे में अभी नहीं सोचना, फ्लोट के बारे में हम कल देखेंगे। ये हो गया एम परसेंट ए, यहाँ पर एक कॉमा देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे एम परसेंट बी। पहली वैल्यू जो आएगी ये जाएगी इसमें, दूसरी वैल्यू जाएगी यहाँ पर। ए का टाइप क्या है हमारे पास में, ये, इसको मैं सेम कर देता हूँ। ये हो गया हमारे पास में एम्परसेंड, और ठीक, ये हो गया हमारे पास में एम्परसेंड बी, और ये हो गया। ठीक, तो आपको ये लाइन लिख सकते हो या एक लाइन ये भी लिखी तो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, यहाँ पर जाएगा हमारा सेकेंड नंबर। ठीक, अब मैं प्रोग्राम में आता हूँ, ध्यान से देखिए। एडिशन ऑफ टू नंबर्स, हेडर फाइल लिखी है हमने, वॉइड मेन। ये वॉइड के बारे में फिलहाल मत सोचो, वॉइड मतलब कुछ नहीं होता, ध्यान में रखना, वॉइड मतलब कुछ नहीं। हमने वेरिएबल या इंट ए कॉमा बी कॉमा सम, CLR SCR का यूज क्या करेंगे हम, जल्दी से बताओ कोई तो भी। क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन क्यों करेंगे हम, प्रीवियस आउटपुट जो होगा उसको हमको वहां से क्लियर करना है, फॉर दैट पर्पस वी विल यूज दिस क्लियर स्क्रीन। नेक्स्ट वन इज दी प्रिंट एफ। क्या करना है हमको, वी हैव टू डिस्प्ले द मैसेज, एंटर फर्स्ट एंड सेकंड नंबर फॉर द एडिशन ऑफ अ नंबर, एंटर। और ये जो एंटर में हम जो प्रिंट एफ में लिखते हैं उसको हमेशा ये पहला जो होता है उसको कैपिटल में लिखना, एंटर टू नंबर्स
फॉर एडिशन ऑफ अ नंबर। एक स्पेस देना, कोलन देना और आगे वो क्यों देना मैं दिखाता हूँ आपको, नहीं दिया तो भी चलता है लेकिन क्यों देना दिखाता हूँ मैं आपको। डबल कोट्स कर दिया कंप्लीट। नेक्स्ट वन इज द स्कैनएफ। स्कैनएफ मतलब जो हमारी जो कंसोल स्क्रीन होगी वहां से वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा। %, क्योंकि दो वैल्यूज हम एंटर करें, पहली वैल्यू जाएगी ए में, दूसरी वैल्यू जाएगी हमारी बी में। नेक्स्ट सम इज इक्वल, नेक्स्ट इज सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी यहाँ कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद प्रिंट एफ, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पर इसको रिजल्ट को हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे और फाइनली यहाँ पर हम सम को डिस्प्ले करेंगे और लास्ट में गेट सी एच और इसको एंड करेंगे। कंपाइल करके देखते हैं क्या होता है। कंपाइल, एरर नहीं आया। रन में चलते हैं, रन। देखिए एंटर टू नंबर फॉर एडिशन, यहाँ पे देखिए स्पेस आ रहा है, पहला लिखा सपोज हमने 10 और दूसरा लिखा 20 एंड द एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज 30। नेक्स्ट टाइम अगर फिर से अगर जब भी मैं इसको कंपाइल करूंगा, चेंजेस नहीं किए तो कंपाइल करने की जरूरत नहीं, वी कैन गो टू दी रन। और जैसे मैंने यहाँ लिखा 23 और ये 46, इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर। ईच टाइम अगर मुझे यूजर से एक्सेप्ट करना है वैल्यू, सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज दिस प्रिंट एफ एंड दिस स्कैनएफ आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक, ये प्रोग्राम में कुछ डाउट है आपको किसी को? नो सर। ठीक, तो ये सर यूज उसका यूज हाँ बोलिए। सर अगर हमने वो INT AB के बाद में सम को मेंशन नहीं किया और ये स्कैनएफ के नीचे में ही किया तो क्या होगा? चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ। एनएफ के नीचे यहाँ पर ना, अगर लास्ट लेक्चर आपने अगर किया रहता तो आपका एक क्वेश्चन नहीं आता था अभी। चलो देखिए, एरर आया, तो भी डिक्लेरेशन होगा वो हमेशा स्टार्टिंग में ही होगा। ये सी प्रोग्राम C++ में चलता है कि आप कहीं पर भी इसको डिक्लेयर कर दो वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसको हमको सबसे पहले हमेशा स्टार्टिंग में ही हमको यहाँ पर डिक्लेरेशन करना कंपल्सन होता है। तो यहाँ पर हमने डिक्लेरेशन ऊपर करोगे, उसके नीचे CLR लिखोगे, CLR SCR, और उसके नीचे आपका पूरा कोड आएगा। ये इसका फॉर्मेट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो सी प्रोग्रामिंग में। C++ में चलता है। ठीक, पर हाँ बोलिए। पॉइंटर्स, अच्छा ठीक, जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल में जाकर उसकी वैल्यूज को वहां से एक्सेप्ट करता है हमारे पास में। एक थोड़ा अर्जेंट मीटिंग है, मैं अटेंड करता हूँ। हम